Hello, everyone, and welcome to another interesting conversation around Wari Energies Limited IPO. Wari Energies Limited is one of the India's leading PV module manufacturer. PV modules in easy language means solar panel. सोलर पैनल यानी वो डिवाइसेस जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. नाउ यूजिंग सोलर पीवी मॉड्यूल्स is highly effective because इन मॉड्यूल्स का यूज आप रेजिडेंशियल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में कर सकते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे आपकी डिपेंडेंसी ऑन द कन्वेंशनल सोर्सेस काफी रिड्यूस हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, सोलर मॉड्यूल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपनी प्रोवाइड्स अ कंप्लीट range of products and services, right from engineering, procurement, and construction services in relation to solar power plants and rooftop solar systems. साथ ही कंपनी के अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं विद रिगार्ड टू सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, एंड दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स generating large scale solar power projects and large scale utility scale power generation plants. Apart from that, company believes that it's high time now towards focusing on promoting the clean source of energies, clean energy to the country, because we are heavily dependent on conventional energy sources like fossil fuels, nuclear power plant, and so on so far. So why not shift our focus, shift our dependencies from the conventional sources to the non-conventional sources like wind and solar, so that we can control on the carbon footprints, carbon emission, and we can develop more effectively the renewable energy solutions. So this is a brief about the company called as Wari Energies Limited. And to get into the details of this IPO, it's important for us to get into the red herring prospectus of the company. So रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एक फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी को सबमिट करना होता है, सेबी को शेयर करना होता है उनके साथ में, ताकि आप और हम जैसे लोग एज अ लेमैन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. कंपनी का ऑफर क्या है, किस पर्पस के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी से रिलेटेड आज की तारीख में क्या रिस्क है, और ऐसी कौन सी पोटेंशियल रिस्क कंपनी फेस कर सकती है फ्यूचर में. तो if you are inviting someone to join you in your business, it's important for you to be very transparent, very clear about what are your potential risk and threats, and at the same point, what are the potential vision of yours for growth, expansion, profitability, and achieving your ultimate goal and objective of the company itself. So, स्क्रीन पे आप सभी के सामने कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी ने आरओसी के साथ में फाइल किया है टू गेट इनटू द आईपीओ process. Now, where the company is registered, who is the promoter of the company? Mitesh Chamanlalji Doshi, Viren Chamanlalji Doshi. So these are the person who being identified as the promoter of the company. What is the fresh issue size? This is also mentioned. And what is the reason why the company is planning or having this offer for fresh issue or offer for sale from the promoter selling shareholding or other selling shareholders. जो जैसे ब्रेकअप जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, everything, every detail is given कि what is the issue size. So 4321 crores का अगर issue size है तो उसमें से 3600 करोड़ का fresh issue है. तो कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, कंपनी से रिलेटेड जनरल रिस्क एंड रिलेटेड इंटरप्रिटेशन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे. करीब 626 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, एंड एज फॉर अस फॉर अ लेमैन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड इट विद इन 5 to 7 minutes, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या बताता है. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस काफी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, करीब 10 सेक्शंस हैं यहाँ पर, और जहां पर सेक्शन 2 आपको समरी देता है कंप्लीट ऑफर डॉक्यूमेंट की. सो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, हम ऑफर डॉक्यूमेंट की समरी देखेंगे, हम ऑफर डॉक्यूमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको देखेंगे, और साथ ही कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें
ड्राइव करेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना चाहिए इस कंपनी के आईपीओ के रिगार्ड में या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पोजीशन को होल्ड करने के रिगार्ड में। तो स्टार्ट करते हैं हम समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट में, बट उससे पहले हम कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे अबाउट अवर कंपनी, राइट। सो कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ये सेक्शन मिलता है अबाउट अवर कंपनी, जहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रियल ओवरव्यू मिलता है। और इंडस्ट्रियल ओवरव्यू में हमें डेफिनेटली एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पिक्चर मिलती है कि इंडिया की इकोनॉमी आज कहाँ है और उसको कंट्रीब्यूट करने में या उसको बढ़ाने में कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं, तो जब जीडीपी की ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो पिछले 3 सालों से हम एक 9.77 और 8.2% की जीडीपी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं। अब ये जीडीपी ग्रोथ किन फैक्टर्स के कारण होती है? डेफिनेटली कंजम्पशन के कारण होती है। पर कैपिटा इनकम जब बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन जब बढ़ रहा है, तब हम जीडीपी में ग्रोथ देखते हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस इस कंपनी की और देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो पावर डिमांड को बूस्ट करते हैं। जीडीपी फैक्टर, जीडीपी ग्रोथ इज वन ऑफ द फैक्टर। ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो पावर डिमांड को बढ़ाते हैं। तो ये चीज तो क्लियर है कि पावर डिमांड कंट्री में सालाना साल बेसिस पर बढ़ना ही है, कंजम्पशन बढ़ना ही है, जीडीपी बढ़ना ही है, और पावर की डिमांड बढ़ना ही है। तो क्यों ना कन्वेंशनल सोर्सेज से अनकन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट किया जाए थ्रू द वारी एनर्जीज। नाउ गेटिंग इनटू दैट, इस तरह से कुछ ग्लोबल सोलर पीवी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की ग्रोथ हो रही है जो कि CAGR 25% है। ये सब रिपोर्ट्स क्रिसिल MI&A, दैट इज मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की ओर से प्रेजेंट की गई है। और इसमें भी एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ये क्रिसिल का अपना ओपिनियन है एंड इट कांट बी द सोल बेसिस फॉर योर डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो काफी सारे डिस्क्लेमर्स, काफी सारे ओपिनियंस हमें यहाँ मिलते हैं, बट लेट्स गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो किस तरह से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्लोबल सोलर पीवी की बढ़ रही है, हम देख सकते हैं 25% CAGR हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वहीं आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस शोज दैट जो एवरेज मॉड्यूल प्राइस है वो किस तरह से हर साल रिड्यूस हो रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इफिशिएंसी सोलर इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व कर रही है। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट डिटेल। इंडिया का पावर सेक्टर क्या है और किस तरह से डाइवर्सिफाइड है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और साथ में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स बताने का पीछे ये था कि आप एक बड़ी पिक्चर को देखें। डेफिनेटली हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में जा रहे हैं, बट उसके पहले ये बेसिक बैकग्राउंड सेट होना काफी जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड कि मैक्रो लेवल पे क्या पिक्चर बनती है कंपनी के ग्रोथ को लेकर, कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। तो हम सभी को पता है कि व्हाट इज द इंटेंट ऑफ ऑफर। Even if some of you are confused about what is the objects of the offer, आप सीधे यहाँ जा सकते हैं and you can understand कि क्या ऑब्जेक्टिव से ये ऑफर आया है फॉर सेल। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर फ्रेश इश्यू या ऑफर फॉर सेल से जो जनरेट होने वाले प्रोसीड्स का है। डेफिनेटली जहां प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज की कर रहे हैं, तो वो पैसा प्रमोटर्स के पास में जाएगा, पर मेजर अमाउंट कंपनी का काय के लिए जाने वाला है। इट इज फॉर द सेक ऑफ पार्ट फाइनेंस the cost of establishing the 6 gigawatt of Infogate wafer solar cell जो कि ओडिशा में है, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट आउट। कंप्लीट प्रोसीड वहां पर कंपनी की फ्रेश इशू की जो है वो उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में यूज करने को लेकर जाएगी। कंप्लीट ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि उस प्रपोज प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 90,499.59 मिलियंस है। अभी तक उस पर कुछ इतना अमाउंट स्पेंड हो चुका है और इतने की फंडिंग उस प्रोजेक्ट के लिए और करना है, दैट इज 89,032.81 मिलियंस। उसमें से 27,750 मिलियन का अमाउंट है जो कि इस इश्यू में से फंड किया जाएगा, और बाकी का बैलेंस वो कंपनी कैसे फंड करने वाली है उसका भी ब्रेकअप यहाँ पर विजिबल है कि कंपनी के पास में काफी अरेंजमेंट्स कंपनी ने कर रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड अरेंजमेंट कर रखे हैं करीब 55,180 मिलियंस के। और इस तरह से कुछ कंपनी के पास में इंटरनल फंडिंग भी है, एक्सटर्नल फंडिंग भी है, और कंपनी उसको मैनेज अच्छे से कर पाएगी अपने
सोर्सेस से some of the debt, some of the equity and some of the internal for the sake of financing the project cost. अब ये जानकारी के बाद में हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हमें देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ कौन से पेज पर है ये कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं कुछ इस तरह से। सो समरी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हियर वी गो। Okay, so pre-stated summary balance sheet of the company, assets and liabilities. स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस इफ एनी को दर्शाता है। तो व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमको एक ब्रेकअप मिलता है कंपनी की इनकम को लेकर, कंपनी के एक्सपेंसेस को लेकर। कंपनी की इनकम लास्ट 3 years के नंबर्स मार्च 2022, 23, 24 एंड एट द सेम पॉइंट अगर आपको जून टू जून कंपैरिजन करना है तो वो भी अवेलेबल है। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए 3 साल के नंबर देखते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें अगर कंपनी का, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आपका 23 का नंबर है और थर्ड कॉलम 24 का नंबर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो उनका पीवी मॉड्यूल से रिलेटेड बिजनेस है उस की मैन्युफैक्चरिंग और सेल से लेकर उन्हें क्या रेवेन्यू जनरेट होता है उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। 28,542 से वो नंबर 67,000 हुआ इन 2023 और वो नंबर आज की तारीख में ऑन मार्च 31, 2024 हो गया अराउंड 113976। अदर इनकम के बारे में बात की जाए तो हाँ, सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है अदर इनकम का। कंपनी का गुड सोर्स of income or revenue generation is from the revenue from operations. Now you can see the growth in terms of revenue from operations, जहां वो growth 2.5 times हुई है, 28,000 से आप देखिए 67,000 हुई है। और वही एक कंसिस्टेंसी कंपनी ने मेंटेन करी है कि नेक्स्ट ईयर भी 67,000 की डबल ऑलमोस्ट 113 कंपनी ने मार्च 2024 के अंदर अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाए हैं, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस डेफिनेटली पीवी मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा लगते हैं। और हमें ये भी पता है कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़कर पता चला है कि कंपनी को काफी सारा एक्सपोर्ट करने के लिए काफी सारा इंपोर्ट भी करना पड़ता है चाइना से। अपने रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंसीज है कंपनी की, से लेके डिपेंडेंसीज है कंपनी का। कंपनी उसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस को हम यहाँ देख रहे हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस पॉजिटिवली ग्रो हो रहे हैं सेल्स की ग्रोथ होते होते तरीके से। और कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को एक्सपेंसेस को देखें तो कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लास्ट 2 years में अच्छे खासे बढ़े हैं। This shows that company is very positively getting into the expansions and growth strategies. साथ में कंपनी का प्रॉफिट्स हम देखते हैं तो कंपनी हैज अ गुड प्रॉफिट और इस तरह से कंपनी का कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ब्रेकअप हमारे सामने है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो बैलेंस शीट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, equity and liabilities and assets. Again, when we talk about the assets, कंपनी के assets नॉन करंट और करंट assets में डिवाइडेड हैं। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म assets। हमेशा मैं एक टर्म का जिक्र करती हूँ पीपीई, विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कंपनी के फिक्स एसेट्स को दर्शाता है। अगर हम कंपनी के फिक्स एसेट्स देखें तो लास्ट 3 years में, मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम देख रही हूँ जहां पे आप देखेंगे कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सिमिलरली कैपिटल, कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कि वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड होकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाता है, वो भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स काफी विजिबल हैं और ये क्लियर है कि कंपनी जितना कमिट कर रही है उतना परफॉर्म भी कर रही है। अगर हम दूसरे डिटेल्स को देखें तो कंपनी के पास में काफी अच्छे तरीके से अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या फाइनेंशियल एसेट्स मेंटेन किए हुए हैं। और कंपनी के अगर करंट एसेट्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मेंटेन करती है, बिकॉज कंपनी का एक्सपोर्ट से काफी बिजनेस जनरेट होता है, कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल से काफी बिजनेस जनरेट होता है। और साथ ही जब दूसरे हम इनिशिएटिव्स को देखें तो ये काफी क्लियर है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को काफी अच्छे से मेंटेन करती है, चाहे वो इन्वेंट्रीज हो, चाहे कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, या कंपनी के बैंक अदर देन कैश इक्विवेलेंट हो। बिकॉज कंपनी के पास में कहीं ना कहीं कैश रिचनेस हमें दिखाई दी है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के मार्जिन को देखते हुए।
कंपनी की इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी की इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होते हैं। लास्ट 2 इयर्स के नंबर्स में अगर हम अदर इक्विटी का नंबर देखें तो 15,950 से वो नंबर 38,248 हो गया है। दिस इज अ गुड साइन दैट कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी। कंपनी डज नॉट हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ फाइनेंशियल बोरोइंग्स व्हेन वी कंपेयर टू द इक्विटी, बिकॉज हाउ इट इज क्लियर, जरा हम यहाँ देखें फाइनेंशियल बोरोइंग्स को हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज में केवल यू कैन सी द नंबर अराउंड 1454 या 1025, which is almost very negligible. कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद में जब हम करंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी की लीज लाइबिलिटीज हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आउटस्टैंडिंग ड्यू टू क्रेडिटर्स हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि काफी सारा कंपनी को इंपोर्ट करना होता है, क्रेडिटर्स को मेंटेन करना पड़ता है, एंड दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, दैट्स हाउ द थिंग्स आर। तो ये हुई कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि कंपनी के पास में ओपेक्स के कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या हैं, कंपनी के कैपेक्स रिलेटेड प्रपोजल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। अब अगर हम एक बड़ा पिक्चर कंपनी के बारे में देखना चाहें तो आगे कुछ डिटेल्स हमें और देखनी होगी, जैसे कुछ इस तरह से हैं कि कंपनी के जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी कितना कैश प्रॉफिट जनरेट करती है। कंपनी कुछ इस तरह से कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती है। लास्ट 2 इयर्स के नंबर्स हम यहाँ देख रहे हैं, जब मार्च 2023 और 2024 के, तो ये नंबर 9409 मिलियन से 20,485 हो गए। मतलब कंपनी ने कितना कमाल का अपना बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म किया है लास्ट 2 इयर्स में, जो कि नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है 1923 से 9409 एंड 2485। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कंपनी के वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखने के बाद भी देखें तो कंपनी एक काफी कैश रिच कंपनी है। ठीक, किसी भी कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का कैश क्या है, कंपनी का डेट क्या है। इन सब पैरामीटर्स पे जब हम कंपनी को इवेल्युएट करते हैं तो हमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कंपनी के कैश को लेकर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को लेकर। हाउ फर्दर देखें तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आप देखेंगे कि कंपनी काफी एक्टिवली अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। सी द नंबर विच आर इन द ब्रैकेट, इट शोज दैट आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, विच इज अ गुड साइन। साथ में कंपनी फ्रिक्वेंटली अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन करती है, बिकॉज कंपनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका कैश उनके बैंक अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में आइडल पड़ा रहे। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो कंपनी रेगुलरली उस पैसे का रोटेशन कर रही है बोरोइंग्स को रीपे करने में, और लास्ट मार्च 31 2024 के दिन आप देखेंगे लगभग लास्ट ईयर में कंपनी ने अच्छा खासा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी बिलीव करती है कि अपनी इक्विटी को यूज करके अपने आरओई और आरओसी को बढ़ाना है और डेट पर डिपेंडेंसी कम करना है, ताकि इंटरेस्ट या फाइनेंशियल रिस्क का कोई चार्जेस उनके ऊपर ज्यादा नहीं लगे। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि ये कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। दूसरे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कंपनी के बारे में देखने और जानने के लिए, तो अगर हम वापस से कंपनी के स्टार्टिंग पेज पे जाते हैं, सॉरी जब हम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के स्टार्टिंग पेज पे जाते हैं तो हमें कंपनी से रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज विथ रिगार्ड टू कंपनी के ग्रोथ प्रपोजल्स क्या है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। सो ये डिटेल्स भी हमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिलती हैं। तो अराउंड आई थिंक हाँ अवर बिजनेस में हम देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि एग्जैक्टली कंपनी आज कहाँ है। कंपनी इज अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर पीवी मॉड्यूल्स। अब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने के साथ में कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट आवर्स की है, राइट। So if you want to know into or get into the calculation of gigawatt hours कैसे होता है, I'll put the link in the description for that. Company is the best, second best operating income among the all the domestic solar PV modules. तो ये सब रिपोर्ट के बेसिस पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे बेसिस पे ये कंक्लूजन्स निकले हैं कि कंपनी ने किस तरह से अपने आप को अपनी ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड या प्रोडक्ट रेंज कैपेसिटी से रिलेटेड या क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इफेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके मार्केट में अपनी एक छाप छोड़ी है। जिस तरह से वो कंपनी अपने मतलब एफर्ट्स कर रही है कि कैसे ना कैसे करके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए और सस्टेनेबल एनर्जी को वे ऑफ लाइफ बनाया जाए, वो काफी क्लियर है। साथ ही हम कंपनी की कैपेसिटी को देखेंगे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को देखेंगे तो 4 गीगावाट से ये कैपेसिटी 12 गीगावाट से पहुंची है। कितना ही कमाल तरीके से कंपनी ने
अपना इंस्टॉल कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, और शायद से यही वजह है कि कंपनी आज एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के इंडिया में। साथ ही अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज को देखें तो काफी वाइड प्रोडक्ट रेंज है। कंपनी के एक्सपोर्ट्स को देखें तो आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ मिलेगी। कंपनी के करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है वो भी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश एंड सो ऑन सो फार। उड़ीसा का तो हमने बात किया ही है आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू चैनल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का किस तरह से सेल्स सेगमेंटिंग है, डायरेक्ट सेल्स कितना है, एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, रिटेल सेल्स कितना है, और कंपनी का फोकस कहाँ जा रहा है। जब हम एक्सपोर्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि किस तरह से कंपनी के एक्सपोर्ट सेल्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो हुए हैं, किस तरह से उनके एक्सपोर्ट्स नंबर बढ़े हैं, और किस तरह से उनकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ी हुई है। तो ये नंबर्स सी दिस आर द कंप्लीट ब्रेकअप कि किस तरह से एक्सपोर्ट सेल्स बढ़े हैं। जहां 2022 में वो नंबर 6578 था, मार्च 2023 में वो नंबर 46165 हुआ, और आज वो नंबर 65690 अराउंड है मिलियंस में। ये कंप्लीट परफॉर्मेंस है कंपनी का एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो कंपनी कितना एग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रही है, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। रेवेन्यू को लेकर कोई डाउट ही नहीं है, कैश फ्लोज को लेकर कोई डाउट ही नहीं है, एबिटा मार्जिन को लेकर कोई डाउट नहीं दिखता, पैट को लेकर, बोरोइंग्स को लेकर भी कोई यहाँ डाउट नहीं दिखता। और जिस तरह से हम कंपनी की आरओई और आरओसीई को देखें, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, पैसा जो इक्विटी होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं वो कितना रिटर्न कमा रहे हैं, इट्स अराउंड 17% टू 26 एंड नॉट 30% अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी हम देख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक मेंटेन्ड लेवल पर है। तो इस तरह से कंपनी का आरओई आरओसी भी स्ट्रांग है, कंपनी के एक्सपेंशंस ग्रोथ प्लान्स काफी क्लियर हैं, और कंपनी के एक्सपोर्ट्स भी काफी क्लियर हैं। कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो भी कंपनी ने यहाँ पर डिफाइन करी है कि किस तरह से कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स का बेनिफिट ले रही है, एक्सटेंसिवली पैन इंडिया में कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर रही है थ्रू द ग्लोबल, थ्रू द फ्रेंचाइजिंग मॉडल, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड सो ऑन सो फार। कंपनी के पास में कितने एक्सपीरियंस मैनेजर पर्सन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या लगते हैं कंपनी को फॉर द सोलर सेक्टर। तो ये कंपनी का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। एंड वन मोर थिंग इज विद रिगार्ड टू जितने फ्रेमवर्क्स, कितनी पॉलिसीज, जितनी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए लेके आ रही है, तो कंपनी उस तरीके उन सब पीएलआई स्कीम्स का किस तरह से बेनिफिट ले रही है, कौन सी ड्यूटीज सब्सिडीज कंपनी को हेल्प कर रही है, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगी। साथ में इट गिव्स अ वेरी क्लियर स्टैंड अप विथ रिगार्ड टू कि कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट किस तरह से बढ़ा है, और कंपनी किस तरह से अपनी डिपेंडेंसी फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम करने की कोशिश कर रही है। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो कंपनी वो भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि जो सेल यूज होता है कंपनी के पीवी मॉड्यूल्स को डिजाइन करने के लिए, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन यही करें इंडिया के अंदर, ताकि उसके जो बेसिकली जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का फोकस होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो जाए, कंपनी की डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टर्स, ऑन द एक्सपोर्टर्स, बेसिकली जो कंपनी से माल मांग रही है, तो कंपनी को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका उन पे डिपेंडेंसी कैसे कम हो जाए, मतलब कंपनी का कुल मिला के इम्पोर्ट कैसे कम हो जाए रॉ मटेरियल का, ताकि क्वालिटी ऑफ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो सके, कॉस्ट रिडक्शन हो सके, कंपनी की एफिशिएंसी ले सके अपने प्रोडक्शन के लिए, और साथ में कंपनी वर्टिकली एक्सपैंड कर सके। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है अपने ग्रोथ को लेकर, अपने एक्सपेंशन को लेकर, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर वारी एनर्जीज लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग हैं, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, कंपनी का पोटेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड to create more sustainable and renewable energy resources in the country, and with the backup of so many incentives, so many strategies from government of India to support the renewable energy domain. I think it's like a win-win approach for the company, because as per the report of Niti Aayog, as per the report of CRISIL as well, there is like
88% of the untapped potential in this sector, which is the solar PV modules, right? Which the company is completely consciously, managing to get into that domain and to definitely they are trying to get the maximum out of the same, right? So company ke prospects काफी strong hai, and this is the complete analysis of Wari Energies Limited. So do share your learning in the comment box, and do comment how you like the video. Do share around your family and friends. Thank you so much.